Hello everyone, welcome to iExamB which prepare 50% faster. Here you'll get the learning experience which prepares you 50% faster for your job preparation. So subscribe our channel for getting the result also 50% faster. So I hope all you are preparing for different competitive examination and you could be the next number in our selection of RBI Grade B or NABARD or SEBI. So hopefully you would be a plus selection and you could be the next. So stay connected with iExamB, follow iExamB. So today I, Akansha Agarwal, your reasoning mentor, would help you work on different variety of puzzles and which is the most trending puzzle in which often you face problems in solving the puzzle. So today I'll tell you the concept how to deal with a month-based puzzle for RBI Grade B and many of the competitive examination you are looking forward to. So such sort of puzzle को कैसे डील कर बिफोर दिस start many of the student ask you ma'am is this the right time to start your preparation and I say yes. See, there is no time limit for your preparation. Somebody get the result in 1 year, somebody 6 months, somebody in 3 months, right? So whenever you thought of your preparation and you execute it well on that day your preparation starts. So what you have to do, just focus on a single goal, believe in yourself that you can do and achieve your things no matter what comes in your way, and just believe in yourself, see your smallest stuff and your discipline, your daily routine will help you in cracking your examination with full determination and focus. So I hope everybody is focusing right on their examination of RBI Grade B as 2.5 months are left for your preparation, right? So what we are going to do, we will work on reasoning topics, but especially we would work on sitting and puzzles. As you all of you know, the most weightage of these topics come in your examination. Now in the puzzle category, I took the puzzle of month-based puzzle, which you often see in your different examination. See, this sort of puzzle look very easy, but इसको किस तरीके से सॉल्व करना है इस पे हम बात करेंगे, और कैसे छोटी छोटी लाइंस को पिकअप करना है और बिल्कुल इतना स्मूथली करना है कि जितने टाइम में हम क्वेश्चन रीड करते जाएं उतने टाइम में हम इसे सॉल्व भी करते रहें, दैट टू बी विदाउट एनी मिस्टेक. दैट मीन्स वी आर कमिंग आउट टू सॉल्व दिस puzzle with 100% accuracy. So as a puzzle, you can just take the screenshot of this question after telling my concept and you can apply then concept to solve this question again. Okay, so here 8 saints are there chanting on 2 different dates. That means 2 dates are given in 4 different months. So here is whenever this sort of puzzle comes, so 2 dates and 4 months, that is 2 into 4, 2 rows and 4 months, a matrix of 2 by 4. Okay, and they chant at different places. That means each one of them, that means 8 saints are there and 8 temples are there. Okay, that is a unique one. That means P, if is in Tirupati Balaji, then nobody else is there. So this is the information. From this information we got an idea that how we have to showcase the structure and इसको हम कैसे resolve करेंगे. Okay, अब इसको resolve करने का तरीका देखिए कैसे करना है आपको. पहले आप अपनी 2 dates लिख लीजिए, 3 and 16, और months लिख लेते हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई. जब भी मंथ्स की बात हो आप इसके अलोंग यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ज़रूर लिख लीजिए. कई बार डेटा में आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि इस मंथ में जिसमें 31 डेज होते हैं उसमें ये बिलोंग करता है या नहीं, लाइक दैट. एंड इवन यहाँ पे डेट्स दे रखी हैं, यहाँ पे ये ऑड नंबर है, यू कैन राइट एंड इवन. अब आप कहेंगे मैम ये हम क्यों लिख रहे हैं, ज़रूरत क्या है, तो सबको पता है. देखिए, पता होने में और एग्जामिनेशन में इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो बेटर आप राइट लिखिए इसको, ताकि छोटी से छोटी बात से भी आपको कोई मिस्टेक ना हो. Okay, so what is the first line provided to you? The one who chants in Badrinath chants before the one who chants in Konark temple, but both of them chant an odd date. So when we talking about date, we are talking about the row.
राइट। ओके, सो यहाँ पे बद्रीनाथ टेम्पल में जो चांट करते हैं वो पहले हैं। कितना पहले हमें नहीं पता, जस्ट पहले हो भी सकता है, उससे बहुत पहले ये भी हो सकता है। बिफोर और जस्ट बिफोर में यहाँ डिफरेंस है, तो यहाँ हमें बिफोर दे रखा है तो हम एक एरो बनाएंगे। कोणार्क से पहले है बद्रीनाथ, अब कितना पास में है कितना दूर है ये हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज आर चांट जस्ट बिफोर द वर्ड जस्ट बिफोर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है जस्ट बिफोर और यहाँ पे सिर्फ बिफोर। बिफोर कितना भी पहले, जस्ट बिफोर तुरंत पहले। यहाँ पे तो आर जो है वो पहले है किससे, जस्ट बिफोर जो तिरुपति बालाजी में चांट करता है। तो जस्ट बिफोर की जब भी बात आएगी आप इसको एक बॉक्स में जरूर बंद करिए, इससे आप खुद भी बाइफिकेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज पहले और कौन सी चीज एक साथ आनी है। बट नॉट इन द सेम मंथ, यानी ये दोनों डिफरेंट मंथ में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिफरेंट मंथ। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ सेंट बिफोर आर। सो आर से पहले जितने हैं उतने ही क्यू के बाद है। आप एरोज यूज करिए, ग्राफ यूज करिए। एक चीज का ध्यान रखिए, पजल में कोई भी लाइन आपको दोबारा नहीं पढ़नी, आप इतने प्रॉपरली उसका ग्राफ बनाइए जिससे आपको जब भी इस लाइन को पिकअप करना हो तो आपको पैसेज में जाने की जरूरत नहीं है, आप ग्राफ देखें और उसको कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज आर नीदर चांट्स इन जनवरी नॉर इन मे। सो वी हैव आर अगेन एंड अगेन। आर ना ही हमारा जनवरी में चांट करता है और ना ही हमारा मई में। अब आप एक चीज देखिए, आपको देख रहा है रिपीटेटिवली आर बार बार आ रहा है, आर यहाँ पे भी आ रहा है, आर यहाँ पे भी आ रहा है, जनवरी और मई में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आर से कुछ कनेक्शन होगा जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एक और पॉइंट लेते हैं। मोर देन 2 सेंट्स आर बिटवीन क्यू एंड द वन हो 2 प्लस। और जब भी मोर देन 2 है तो मुझे नहीं पता कौन सा ऊपर है कौन सा, तो आप बाई डायरेक्शनल एरो यूज करिए। एंड द वन के लिए ना हम हमेशा एक सर्कल यूज करते हैं, तो दो चीजों में हम बाइफरकेट कर पाते हैं। लो को सर्कल में रखिए, उससे जो रिलेटेड डेटा है वो उसके साथ में लिखिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, पहले हम इतना ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर इससे हमारा कुछ फायदा होता है। अब आर डिफरेंट जनवरी और मई में नहीं है तो ऑफकोर्स मार्च और अप्रैल में है, और आर और तिरुपति बालाजी डिफरेंट मंथ में, तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग गया। अगर हम आर थर्ड में रखेंगे तो तिरुपति जस्ट नेक्स्ट आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आर आपका 16 मार्च को आ गया, इसके जस्ट नेक्स्ट तिरुपति आ गया। ओके, सो अब अगर आप यहाँ देखें तो एक दूसरा केस बनता है, तो इमीडिएटली आप कोशिश करेंगे इसको अलग अलग दो केस बनाने की, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, लेकिन आपकी चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती। आपने फटाफट डेटा कॉपी करा। अब आर यहाँ तो अब अप्रैल की बात करें तो ऑफ कोर्स 3 अप्रैल नहीं आ सकता क्योंकि फिर तिरुपति नेक्स्ट लाइन में आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो आर यहाँ पे आएगा और तिरुपति यहाँ पे। ओके, सो यहाँ से अब आर से रिलेटेड डेटा हमारे पास क्यू भी है। आर से जितने पहले हैं बिफोर उतने ही क्यू के आफ्टर में है। सो आर का फर्स्ट केस में काउंट करते हैं, सो इट्स 1 2 3। तो क्यू के बाद में 1 2 3 यहाँ पे आपका क्यू आ जाता है। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो आर से पहले 1 2 3 4 5 है, तो क्यू के बाद 5 आएंगे, तो पीछे से काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्यू। सो दोनों में हमने क्यू और आर को प्लेस कर दिया। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे क्यू से ही रिलेटेड है, तो क्यू और मीनाक्षी टेम्पल में 2 से ज्यादा लोग हैं। तो अगर मैं क्यू की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्यू के बाद 2 का गैप छोड़ के मीनाक्षी टेम्पल यहीं आ सकता है, विच इज नॉट फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ मोर देन 2। सो इससे पहले जाते हैं 1 एंड 2, तो मीनाक्षी टेम्पल यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि 2 का गैप होगा, तो मीनाक्षी टेम्पल के लिए एक ही जगह बची यहाँ पे हमारे पास। इस केस में हम बात करें तो बिफोर तो हम जा ही नहीं सकते, बाद की बात करते हैं, तो क्यू के बाद 1 2 3 यहाँ पे नहीं, यहाँ तो हम रख नहीं सकते क्योंकि 2 हो जाएगा, मोर देन 2 चाहिए। यहाँ पे रखेंगे, तिरुपति ऑलरेडी है तो मीनाक्षी टेम्पल यहाँ। दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों केसेस साथ में चलते रहेंगे। अब मीनाक्षी टेम्पल, ओके अप टू हियर वी डिड। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। 4 सेंट चांट्स बिटवीन मीनाक्षी टेम्पल एंड सोमनाथ टेम्पल। तो मीनाक्षी टेम्पल और सोमनाथ के बीच में 4 का हमारा डिफरेंस है। सो यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल ऑलरेडी हमारे पास है एंड 4 हमारे पास 1 2 3 4, तो सोमनाथ टेम्पल हमारा यहाँ पे आ गया। और मीनाक्षी टेम्पल की हम बात करें यहाँ पे, सो 1 2 3 4, 1 2 3
4 का डिफरेंस है, तो सोमनाथ टेम्पल हमारा यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, Q does not chant in, ठीक है, अब Q does not chant in सोमनाथ टेम्पल, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, तो सेकंड केस हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, we chant just after, remember the word just after the one who chants in golden temple, तो गोल्डन टेम्पल के जस्ट आफ्टर हमारा वी। अब देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि ये जस्ट आफ्टर वाला है, क्योंकि मैंने इसे ब्लॉक में करा है, और कोई बिफोर है तो हमने उसे ब्लॉक में नहीं करा। ये आपकी हैबिट्स है पजल सॉल्व करने की, जो हमें हेल्प करेंगी थ्रू आउट, बट नॉट इन द सेम मंथ, दैट मीन्स दे वुड बी इन डिफरेंट मंथ, तो वी और गोल्डन टेम्पल हमारा डिफरेंट मंथ में आएगा। नेक्स्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं, एस चैंट्स इन जगन्नाथ टेम्पल, तो एस का जगन्नाथ टेम्पल से साथ में है। ओके, नेक्स्ट टी जस्ट बिफोर पी, ओके, सो अगेन आई विल मेक इट अ ब्लॉक, टी एंड पी साथ में, सेम मंथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे बोथ आर इन सेम मंथ, दैट विल एक ही कॉलम में दोनों आएंगे। और लास्ट लाइन इज यू more than one sentence between you and the one who is in Ramanath Swami temple, okay, like this। अब हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो मीनाक्षी टेम्पल सोमनाथ टेम्पल तक वी डिड, अब गोल्डन टेम्पल और वी कहाँ पे फिट हो सकता है, टी और पी, एस जगन्नाथ और यूना। तो अगर आप देखें हमारे पास एक पॉइंट ये भी था, बद्रीनाथ और कोणार्क हमारे किस में है, बोथ आर इन ऑड, फर्स्ट लाइन, बट बोथ आर ऑन ऑड डेज, तो ऑड डेज में हमारे यहाँ पे बद्रीनाथ और कोणार्क टेम्पल थे, ऑड में हमारे पास दो ही पुजे, और बद्रीनाथ पहले था तो बद्रीनाथ यहाँ आ जाता है, कोणार्क टेम्पल यहाँ फिट हो जाता। अब अगर टेम्पल्स की बात करें तो 1 2 3 पोजीशंस आर जस्ट लेफ्ट फॉर द टेम्पल्स, तो ऐसे चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे गोल्डन टेम्पल और वी रखें तो गोल्डन यहाँ आ सकता है, वी यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि डिफरेंट मंथ में है। अच्छा, गोल्डन यहाँ रखे तो वी यहाँ नहीं आ सकता, ऑक्यूपाइड है, गोल्डन यहाँ भी नहीं आ सकता, तो हमारे पास एक ही स्पेस बचती है जिसमें गोल्डन टेम्पल यहाँ हमारा 16 जनवरी को आएगा और वी हमारा 3 मार्च को हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, अब टी और पी की अगर हम बात करें तो टी और पी हमारे एक ही मंथ में या तो भाई जनवरी में आएगा या मई में आएगा, तो पहले हमारे पास कंफ्यूजन है और इतना ज़्यादा हमारे पास डेटा बचा नहीं है, तो हम एस और जगन्नाथ को फिट करने की कोशिश करते हैं। टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल्स में दोनों स्पेस एक ही लास्ट कॉलम में हमारे लेफ्ट सेल में, एक्सेल की भाषा में बात करूं तो सेल की बात होती है, जगन्नाथ टेम्पल हमारा लास्ट में आ गया, और जैसे ही जगन्नाथ तो टी और पी हमारा जनवरी में आ गया, और हमारा बचा रामा स्वामीनाथ टेम्पल, हमारे टेम्पल के लिए एक ही स्पेस बची जिसमें आर के साथ रामा स्वामी टेम्पल आ गया आपका, और जब आ गया तो यहाँ पे रामानाथ स्वामी और यू में एक का अब 2 स्पेसेस आर लेफ्ट फॉर यू, सो अगर मैं यहाँ पे यू लिखूँ तो एक ही का गैप होगा और हमें एक से ज़्यादा चाहिए, तो यू यहाँ आ गया। कौन सा पर्सन का सेंट का नाम बचा, PQRSTUVW, सो डब्ल्यू आपका यहाँ पे आ गया, और यहाँ से पूरा पार्ट हमारा बढ़िया से बन गया। और आप देखिए कोई भी लाइन हमने रिपीट नहीं करी, कुछ भी हमसे गलती भी नहीं हुई, और सारा डेटा हमारा अच्छे से आ गया। सो पजल सॉल्व करने का ये बेस्ट तरीका है, जिसमें आप हर लाइन का एक ग्राफ बनाते जाइए और इस पे वर्क करते जाइए। मोरोवर इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी जीए है, जिसमें आप टेम्पल्स की लोकेशन देख सकते हैं, कहाँ पे है, कौन से लॉर्ड पे ये गॉड इसमें वर्शिप करी जाती है, कौन से गॉड की, ये क्वेश्चन आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग हो जाते हैं जीए में। और जीए आई होप ये क्वेश्चन सोल्यूशन आपको सब समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी और मोर पजल्स के लिए यू स्टे कनेक्टेड, और just wait for my new videos for more puzzles and sitting arrangement and most important question for reasoning। और जीए की बात हो ही रही थी, आप देखिए आप जब आई एग्जाम बी की साइट पे जाएंगे तो जनरल अवेयरनेस में आपके मई के पूरे जीए अपडेट्स हैं करंटली, और हर मंथ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको बीपीडिया पे सारे जीए और करंट अफेयर्स को मिलते हैं, उसे पढ़िए और अपनी जीए को डेली अप टू डेट डेली काम करिए इस पे, जिससे आपका स्कोर बढ़े। So stay connected with iExamB, follow Akansha Agarwal and subscribe to our channel iExamB, and thank you for this session। Hope आपने सभी ने डाउनलोड करी होगी iExamB की ऐप, और इस वीडियो को देख के आपकी पजल सॉल्व करने का तरीका और अच्छा हो जाए और आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करें। थैंक यू।